Okay, see semiconductor chapters के अंदर में like whatever modern gadgets we are working on, they have all been developed because of these semiconductors. Starting from नहीं ये general information है. All the gadgets we are using currently, be it mobile phone, be it laptops, or compact size of computers, compact sized mobile phones. I mean, they are all the electronic gadgets or development in electronic gadgets are because of semiconductors. Okay? They all work on the fundamentals of semiconductor, or they all uses semiconductors. So entire chip technology has developed because of the semiconductor. Okay? These are basically crucial and you can say kind of backbone to the modern era developments, especially to telecommunication devices and industry, including electronic and telecommunication industry, and the computer science. The key lies to the success of semiconductors, or the more we refine our semiconductors, the better and advanced we make it, the faster our gadgets become and compactor they become more compact they become. Okay. So how they precisely work is what we are going to study in this chapter. क्या हाँ जितना हमारा सेमीकंडक्टर इफिशिएंट और एडवांस होता जाएगा, हमारे डिवाइसेस का साइज जो है वो छोटा होता जाएगा. ठीक है. प्लस उनकी इफिशियंसी बढ़ती जाएगी. साइज छोटा होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इफिशियंट होते जाएंगे. जैसे मोबाइल फोन इतना बड़ा है, अब इसको और छोटा करने से हमको कुछ फायदा नहीं होगा. वी आर वेरी मच कैपेबल ऑफ होल्डिंग इट इन आवर हैंड वेरी पीसफुली एंड डूइंग ऑल द एक्टिविटीज. तो इसके साइज पर ध्यान देने का और हमें जरूरत नहीं है. व्हाट इज मोर नेसेसरी इज इसी साइज में इफ आई कैन स्टोर मोर डेटा, if the system can function more fast, the calculations, I can introduce more features to it. ठीक है. अभी हम जितने फीचर सोच पाते हैं हमारे जनरल यूज के लिए वो सारे इसमें हैं. और can I work on C++ using this, या जावा के एप्लीकेशंस पे इंस्टॉल करके इसी पर कंपाइल करके रन कर सकता हूँ क्या? शायद they are not that compatible as of now, but with few more advancements in semiconductor technology, they may become that handy कि हमको लैपटॉप की जरूरत ही ना पड़े, इसी पे हम मेजॉरिटी ऑफ काम कर पाए. ठीक है. हाँ, सेमीकंडक्टर बेसिकली इसके अंदर जो मेमोरी चिप्स होती हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर. ठीक है. सो चिप जिस पर ये पूरी चीज चलती है, इंक्लूडिंग मेमोरी एंड फंक्शनिंग, सारी चीजें चिप कंट्रोल्ड होती हैं. दैट चिप इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स. ठीक है. सेमीकंडक्टर्स का लिटरल मीनिंग क्या होता है? व्हेन वी मस्ट हैव हर्ड ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. फिर क्या हो गया? सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. नाउ दिस इज अ कैटेगरी ऑफ material, or you can say elements which have conductivity in between conductors and insulators. So conductors on one hand are very good at conducting currents. There is very small loss of energy while conduction is taking place through conductor. Insulator on other hand do not allow electrons to flow through them or current to flow through them. They provide too much of resistance. Semiconductor is a class of material or a class of elements which are intermediary between these insulators and conductors. So I would directly go to the 1.1 part, 14.2, electrical conduction in solids.
सी सॉलिड्स में हमारा आइडिया जो है कंडक्शन का, वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन, और अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मटेरियल डिसाइड्स द कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ हैं? हमारा आइडिया ये होता है कि एटम्स आर अरेंज्ड लाइक दिस, और जब ये अरेंज्ड रहते हैं इस तरीके से इन देयर क्रिस्टल लैटिस, दे टेंड टू लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे अपने अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं। एक कर सकते हैं तो एक, दो कर सकते हैं तो दो, जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो इजीली लूज कर सकते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस, वो उसको लूज करके रखते हैं। वो लूज करके क्यों रखते हैं? लूज कर देने से उनकी पोटेंशियल एनर्जी, पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है लूज करने के बाद, वो बिना लूज किए हुए कंडीशन से कम हो जाती है। ठीक है, so the intrinsic energy you can say, or potential energy of the system consisting of lattice system, the potential energy of the lattice system with neutral electrons has higher energy compared to the lattice arrangement where the valence electrons have left the metal atom, the neutral atom, making them positively charged, and electrons of all the atoms which have left, the valence electron which has left the atom to create a cation, they are placed in between the cations, cationic metal ions. ठीक है, and this phenomena leads to lowering of potential energy. ठीक है, the basic idea is if this electron is bound to just one atom, it will be under influence of a single nucleus. But when same electrons come in influence of 4 different nucleus, ठीक है, the potential energy of this electron is going to reduce. So 4 पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर एक इलेक्ट्रॉन को रखते हैं और उसी इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज के बीच में रखते हैं, तो सेकेंड वाले सिनारियो में द पोटेंशियल एनर्जी इज बाउंड टू डिक्रीज। देखिए, अगर एक पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में मैं इलेक्ट्रॉन को रखता हूं इसके बाउंड्री के अंदर, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी हायर कंपेयर टू मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ ये बाकी के पॉजिटिव चार्ज के भी इन्फ्लुएंस में आए। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी में मैंने फॉर्मूला बताया था, इफ यू गाइस माइट रिमेम्बर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करा रहा था तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी निगेटिव। ये सिंगल निगेटिव नंबर रहेगा और ये 4 निगेटिव नंबर्स का सम रहेगा, क्योंकि चार्ज एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वैल्यू निगेटिव आएगा। 4 निगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन एक निगेटिव नंबर। ठीक है, यानी एनर्जी और कम हो गई, एनर्जी कम हो गई, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली यहां पर रहना चाहते हैं, फ्री होकर के रहना चाहते हैं 4 वाले में। हाँ, हाँ, ठीक है, -3 है और -2 को 4 बार ऐड किया तो -8 हो जाएगा। -8 इज लोअर देन -3, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, इसलिए वो फ्री स्टेट में रहना चाहता है, बाहर निकल के रहना चाहता है, एटम से बाहर निकल के रहना चाहता है। हाँ, तो वो रहना क्यों चाहता है वही तो डिफाइन कर। हाँ, कम चाहिए क्यों? हर किसी को चाहिए कि कम एनर्जी में रहे, कम एनर्जी स्टेट में रहे। ठीक है,
nobody can keep jumping. ठीक है, everybody will try to come to rest after jumping for some time. तो रेस्ट पर आना, मिनिमाइज करना पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज लॉ ऑफ नेचर. एवरीबडी ट्राइज टू मिनिमाइज देयर पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, एंड दैट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स. अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करती हैं. हमारा मेटालिक सिस्टम या सॉलिड सिस्टम जो है, व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे do so by losing their valence electrons, or uh, yeah, by losing their valence electrons, and those valence electrons behave as free electrons. ठीक है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास टेंडेंसी ऐसी होती है कि इट कैन जंप फ्रॉम हियर टू हियर, हियर टू हियर, हियर टू हियर, हियर टू हियर. ये बात समझ में आ रही है? दे कैन फ्रीली जंप. ठीक है, यहां से यहां, और ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां. क्यों जंप कर सकता है? इसके पीछे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, सेम पोटेंशियल वाले सरफेस पे अगर आप मूव करते हो, ठीक है, तो आपकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता. ठीक है, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम पोटेंशियल V1 टू V, I mean 1 बोलू या V2 बोलू, such that V1 is equal to V2, तो फिर आपका एनर्जी लॉस या गेन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी जीरो. दैट मींस इफेक्टिवली ये बिल्कुल लूज नहीं कर. बट इस प्रोसेस में, मतलब सिर्फ पोजीशन चेंज करने से ये कोई लॉस नहीं कर रहे हैं, बट इसमें भी लॉस होता है. अभी तक ये इलेक्ट्रॉन जो था वो सिर्फ इन चार के इन्फ्लुएंस, ये जितना मूव करेगा, यहां से यहां जंप करके आया, तो थोड़े देर के लिए इन चार के इन्फ्लुएंस में, थोड़ी देर के लिए इन चार के इन्फ्लुएंस में, थोड़ी देर के लिए इन चार के इन्फ्लुएंस में. तो द नंबर ऑफ एटम आयंस, कटायंस, जिनके इन्फ्लुएंस में फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये रहता है, दैट नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज देन 4. ठीक है, हाँ हाँ, सॉर्ट ऑफ हम बोल सकते हैं. ठीक है, हर जंप, नहीं, वो चार का इन्फ्लुएंस थोड़ी देर के लिए रहेगा जब ये जंप ले रहा हो. ठीक है, तो चार से बढ़ गया इन्फ्लुएंस. ठीक है, तो ऑन एवरेज चार से ज्यादा का इन्फ्लुएंस इस पर हो गया. ठीक है, अब इसकी वजह से दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन. इफ यू आर नॉट लोकलाइज्ड एज अ सिंगल पोजीशन, you are called delocalized. Now, because of this delocalization of electrons, it further tries to keep moving freely in the entire metal lattice from here to there. और ये जंप्स जो होते हैं बिल्कुल रैंडम होते हैं. रैंडम होते हैं मतलब ये जरूरी नहीं कि यहां से यही जंप करे, यहां से यहां भी जंप कर सकते हैं, यहां से यहां भी जंप कर सकते हैं. यहां से आया यहाँ पे और फिर उसके बाद यहाँ पे जंप कर, फिर उसके बाद यहाँ पे जंप कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे जंप कर लिया. So its jumps are going to be random, absolutely random. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, अभी एंट्रोपी शायद पढ़ लिया होगा. हाँ, पढ़ा ना? एंट्रोपी क्या बोलता है? सिस्टम जितना रैंडम होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी. ठीक है, सो रैंडमाइजेशन से भी हमारी एनर्जी कंपोनेंट जो होती है वो कम होती है. ठीक है, ओके. तो कंडक्टर्स में क्या होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी जो होता है दैट इज प्रीटी हाई. और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो जो ये रैंडम जंप था दैट बिकम्स अ ऑर्गेनाइज्ड जंप. अभी तक ये जो इलेक्ट्रॉन्स आर्बिट्रली जंप कर रहे थे, नाउ दे आर गोइंग टू मेक ऑर्गेनाइज्ड जंप.
under the influence of this positive charge, this positive potential. तो यहां से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव के साइड इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, ठीक है। एंड देयरफॉर करंट विल बी कंडक्टेड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस तरफ होगा और करंट विल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बात समझ में आ रही है यहां तक की? तो इसका मतलब हुआ जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसमें रहेगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, बेटर होगी, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पर वी हैव कैटेगराइज्ड आवर सॉलिड्स इनटू थ्री कैटेगरीज: conductors, semiconductors, and insulators. कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। अब यहां पर कुछ मटेरियल का, सम ऑफ द मटेरियल्स कंडक्टिविटी इज गिवन, ठीक है। कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। क्या क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन्फ्लुएंस किसकी करते हैं? हाँ 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 हाँ, फोर से इंक्रीज हो, इन्फ्लुएंस इट विल कम अंडर साइमल्टेनियस इन्फ्लुएंस ऑफ more than four metal cations. अभी मैं एक बार इसको रीड कर देता हूँ एंड देन आई विल वॉक ओवर हियर। अच्छा, कंडक्टिविटी जो होती है वो रेसिस्टिविटी के अपोजिट होती है, ठीक है। ये मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पार्ट पढ़ाया था उसमें मैंने थोड़ा सा बताया था आप लोगों को। R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए एंड रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल, ठीक है। रो का इनवर्स जो होता है दैट इज सिग्मा। कंडक्टिविटी होती है दैट इज 1/रो सीमेंस, हाँ। इट इज इक्वल टू L अपॉन R बाई ए। 1/R जो होता है इसको कंडक्टेंस बोलते हैं एंड इट इज जनरली गिवन बाई G, L बाई ए। So conductivity is equal to conductance into length upon area, and it is equal to 1/rho. Conductance. This is conductivity. Conductivity. This is conductance.
कम नहीं, ज्यादा, कंपेयर टू जब वो मल्टीपल में रहेगा। राइट, रो इज इक्वल टू 1/रो इज इक्वल टू L upon RA is equal to GL upon A. This is conductivity. This is resistivity. This is resistance. This is conductance. G is equal to 1 upon R. ये फॉर्मूले हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा हुआ। ये सारे के सारे वही फॉर्मूले हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, रेसिस्टेंस का सबका यूनिट भी फटाफट बता देता हूँ। रेसिस्टेंस इज ओमेगा और ओ एच एम। रेसिस्टिविटी इज ओमेगा पर मीटर और ओम पर मीटर, ओम पर मीटर। और कंडक्टेंस इज MHO और उल्टा ओमेगा और साइनस। कंडक्टिविटी इज पर मीटर और पर ओमेगा पर मीटर और साइमन्स पर मीटर। ये सारे एसआई यूनिट्स। हाँ, या फिर MHO भी हो सकता, MHO पर मीटर। एक और रहता है OHM पर ओम पर मीटर। इसके 5 यूनिट से कोई भी यूज किया जा सकता, बट एसआई फॉर्म में जनरली हम इसको यूज करते हैं। हाउएवर ऑल ऑफ देम आर एसआई। क्या इसको, ये सारे के सारे एसआई यूनिट्स, और ये भी पांचों एसआई यूनिट, 5 अलग अलग फॉर्म में लिखे, जिसमें से ये 2 फॉर्म अब यूज होना बंद हो, दे आर नो मोर यूज्ड। हाउएवर काफी सारे इंटरनेशनल बुक्स में ये वाले साइंस भी, स्पेशली पुराने रिसर्च पेपर्स में, ये वाले भी साइंस हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाउ वी विल वॉक थ्रू 14.2। Electrical conduction in solid takes place by transport of charge carriers. It depends on its temperature, the number of charge carriers, how easily these carriers can move inside a solid, its mobility and its crystal structure, types, nature of defects present in solid, etc. So there are variety of things on which the conductivity is going to depend. Some of them are first temperature. ठीक है, टेम्परेचर से क्या डिसाइड होगा, इलेक्ट्रॉन्स कितने बाहर निकल के बैठे। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के बैठे। वो सेमीकंडक्टर में वही वाला चीज खाली डोमिनेंट रहता है। मेटल्स में उसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ कम होगी। हाँ, तो
इलेक्ट्रॉन्स के निकलने में टेम्परेचर हेल्पफुल होता है, बट साथ में ये दूसरा काम भी करता है। मेटल आयंस जो एक जगह पर था उसका रैंडम मोशन, इसका भी रैंडम मोशन क्रिएट कर, इसका रैंडम मोशन क्रिएट होगा तो इसके वजह से इलेक्ट्रॉन का वो जो चार वाला सिस्टम था, चार के इन्फ्लुएंस में आने का या चार से ज्यादा के इन्फ्लुएंस में आने का, वो डिक्रीज हो जाए। ठीक है। मेटल्स, नंबर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देखो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल में भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, नॉट बाय ग्रेट अमाउंट बट बाय वेरी स्मॉल अमाउंट, क्योंकि उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले ही निकल, लगभग सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले ही निकल। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो कि मेटल में 95% इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कंडक्टिविटी गेन करने का और 5% ही चांस है। ठीक है, बट एटम्स के रैंडमाइजेशन की वजह से लूज करने के चांसेस ज्यादा है, चांसेस नहीं, लूज लॉस ऑफ इन्फ्लुएंस जो है दैट इज गोइंग टू बी मच ग्रेटर देन दिस इंक्रीज। ठीक है, increases increases and hence the influence on electrons, free electrons decreases. ठीक है, and therefore conductivity is going to decrease in metals, whereas semiconductors में naturally the number of electrons which are going to come out at normal temperature is pretty high. It's just 0.01% sort of. ठीक है, या इससे भी कम रहता है। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसके पास बढ़ने की पॉसिबिलिटी 99.99%। अभी भी गैप है जिसको वो कवर कर सकता है। अगर यहाँ से ये मान लो 20% भी टेम्परेचर बढ़ाने से गया तो वी आर बेसिकली गोइंग 2000 टाइम्स, वी आर इंक्रीजिंग बाय 2000 टाइम्स। 20 by 0.01 is 2000। ठीक है, तो कंडक्टिविटी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। रैंडम मोशन की वजह से प्रॉब्लम कम होगा, बहुत कम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से हमको बेनिफिट ज्यादा हो, तो वहां पे टेम्परेचर चेंजेस सपोर्ट है। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ज्यादा होंगे अवेलेबल, यानी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे अवेलेबल, तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। Number of charge carriers. Next thing is how easily these carriers can flow inside the solid. That is mobility of charge. Mobility of charge. The next thing is अगर वो जो metal ions placed थे वो अगर far placed होते हैं so there will be a less resistance because number of collisions will be less movement के time पर, and therefore resistance will be less. अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट है तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट मोर, देयर विल बी कोलिजन्स एंड मोर रेसिस्टेंस। टाइप्स एंड नेचर्स ऑफ डिफेक्ट। अब डिफेक्ट का क्या प्रॉब्लम है, तो डिफेक्ट ऐसे काम करता है, ब्रॉडली समझ लो, मेटल्स में इट इज गोइंग टू क्रिएट ट्रबल फॉर, ठीक है, मेटल्स में ये कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। तो बेसिकली आइडिया ये है कि अगर हमारे पास 95 to 96% इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी निकल के बैठे हुए हैं, तो आई एम ऑलरेडी रीच इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आई डोंट हैव स्कोप, मच स्कोप टू इंक्रीज इट। अब कोई भी इम्प्योरिटी आती है वो अगर अपना जैसे 500 मेरे पास एल्यूमिनियम या सिल्वर के एटम्स पड़े हुए, 500 से 5000, उसमें 3000 मैंने या 300 मैंने 300 400 जिंक के मिला दी। ठीक है, तो जिंक इज नॉट अ बेटर कंडक्टर देन सिल्वर। ठीक है,
जिंक की टेंडेंसी 95-96% की नहीं रहेगी, उससे थोड़ी कम रहेगी। तो ये क्या करेगा, 90% अगर एफिशिएंसी उसकी है इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके रखने की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करके रखने की, तो वो सिल्वर के साथ जब मिक्स होएगा तो इट इज गोइंग टू रिड्यूस द कंडक्टिविटी ऑफ द सिल्वर। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग। एंड ऑन कॉन्ट्ररी, अगर हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, वो भी वाइजली, आर्बिट्रली नहीं, वाइज एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज इन सेमीकंडक्टर्स लीड्स टू इंक्रीज इन कंडक्टिविटी, क्योंकि वो चार्ज कैरियर्स बढ़ा देता है, कि वहां पे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वहां पर नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन, but there is something called as holes. They are also responsible for conductivity. We are going to see it in due course. There can be three types of electrical conductors. It could be a good conductor, a semiconductor, or a bad conductor. The first one is conductor, that is metals. The best example of conductor is in metal. They have large number of free electrons available for electrical conduction. A typical metal will have 10 to the power 28 electrons per meter. Metals are good conductors of electricity due to large number of free electrons present in them. So they are good conductor because of large number of free electrons present in them. Insulators, glass, gold, rubber are some common examples of insulators. Insulators have very small number of free electrons present in them. Yeah. Okay. Semiconductors, these are few of them. I mean, इसमें से natural तो ये ठीक है. Silicon, germanium, and gallium. These three are primary semiconductors available to us. Silicon, germanium, gallium. और सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम के कुछ कंपाउंड्स जैसे गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम नाइट्राइड, कैडमियम सल्फाइड इज आल्सो देयर, आर सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर. Electrical conductivity of semiconductor is between the conductivity of a metal and that of an insulator. So far as this is a point to be noted, the electrical conductivity is in between the insulator and the conductor. The number of charge carriers in semiconductor can be controlled as per our requirement. The good thing is this, that we can control the number of charge carriers through a method called doping. Okay. Number of charge carriers can be controlled based on requirements. Their structure can also be designed to suit our requirement. Such materials are very useful in electronic industry and find a क्या हुआ गया Their structure can also be designed to suit our requirements. Such materials are very useful in electronic industry and find applications in almost every gadget of daily use, such as a cell phone or a solar cell or a complex system such as satellite or international space station. Electrical conductivity of some commonly used materials, silver ka 6.30 10 to the power 7 Siemens per meter, 5.96 10 to the power 7, aluminium is 3.5 10 to the power 7, gold is 4.1 into 10 to the power 7, nichrome 9.09 into 10 to the power 5, platinum 9.43 into 10 to the power 6, germanium 2.1, silicon 1.56 into 10 to the power minus 3. These are two good semiconductors.
air 3 into 10 to the power minus 15 to 8 into 10 to the power minus 15, glass 10 to the power minus 11 to 10 to the power minus 15, Teflon 10 to the power minus 25 to 10 to the power minus 23, wood 10 to the power minus 16 to 10 to the power minus 24. So range of conductivity, ये mid zone वाले जो होते हैं, they are semiconductors. Electrical conductivity in a solid is given by this formula. ये हमने electrical conductivity में discuss किया था, where n is the charge carrier density, that is number of electrons and holes per unit volume. Q is the charge on carrier, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज या फिर होल के ऊपर भी उतना ही चार्ज, एक पर निगेटिव होता है एक पर पॉजिटिव. Mu is mobility of carrier, how fast or how slow the carriers are moving. Mobility of charge carrier is measure of ease with which a carrier can move in a metal under the action of an external electric. हम लोगों ने ये एक्सप्रेशंस डेराइव किए थे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले के टाइम पर, sorry, current density. It depends upon many factors such as mass of the carrier, whether the material is crystalline or amorphous, the presence of structural defects in a material, nature of impurities in a material, and so on. Figure 14.1 shows the temperature dependence of electrical conductivity of a typical metal and a semiconductor. When the temperature of a semiconductor is increased, its electrical conductivity also increases. ठीक है, ये ग्राफ हम लोग को नोट कर लेना है और ध्यान करना है, इट्स इम्पोर्टेंट. मेटल्स के केस में इट इज गोइंग टू डिक्रीज, नॉन सॉरी सेमीकंडक्टर के केस में इट इज गोइंग टू इंक्रीज. Variation of electrical conductivity of semiconductor with change in its temperature is a very useful property and finds application in large number of electronic devices. A broad classification of semiconductor can be: first, elemental semiconductors, silicon, germanium; compound, cadmium sulfide, zinc sulfide, gallium arsenide; and then we have organic semiconductors, anthracene, doped, halocyanamide, cyanine, polyaniline, etc. ये नाम भी हम लोग कैटेगराइज, एलिमेंटल, कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक, तीन क्लासेस हैं डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ मटेरियल इट इज. ठीक है, मेथड ऑफ ये मेथड ऑफ करंट ट्रांसमिशन के बेसिस पर दो और टाइप आएंगे इंट्रिंसिक, तो वी आर गोइंग टू लुक एट देम. ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे करना होगा कर लेना, आज इसको
Elemental semiconductor and compound semiconductors are widely used in electronic industry. Discovery of organic semiconductor is relatively new and they find lesser. We haven't yet started using them in devices as of now. That is another research area which requires attention. Electrical properties of semiconductors are different for metals and insulators due to their unique conduction mechanism. The electronic configuration of elemental semiconductors, silicon and germanium, plays a very important role in their electrical properties. They are from fourth group of elements in the periodic table. Fourth मतलब हमारा current एक दो तीन चार मतलब हो गया कार्बन कार्बन के नीचे वाले जो हैं ये दोनों हैं. They are from fourth group element in periodic table. They have a valence of 4, a valency of 4. 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मेनली एलिमेंटल फॉर्म में यही दोनों सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. बाकी सारे कंपाउंड फॉर्म. They are from fourth group and therefore valence electrons, 4 valence electrons are associated with each of them. Their atoms are bonded by covalent bonds. At absolute zero temperature, all the covalent bonds are completely satisfied in a single crystal of pure silicon or germanium. The conduction mechanism in semiconductor can be better understood with the help of band theory of solid. Okay. Okay, good. Band theory of solid, a brief introduction. We begin with the way electron energy energized in an isolated atom are distributed. Energies in an isolated atom are distributed. An isolated atom has its nucleus at center, which is surrounded by number of revolving electrons. These electrons are arranged in different discrete energy levels. When a solid is formed, a large number of atoms are packed in it. The outermost electronic energy level in a solid are occupied by electrons from all atoms in a solid. Sharing of outermost energy levels and resulting formation of energy bands can be easily understood by considering formation of solid sodium. Formation of solid sodium explain किया गया उसके basis पर bond band theory जो है उसको explain करेंगे. So I'll come to it. Let me read it out first. The electronic configuration of sodium atomic number 11 is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. The outermost level 3s can take one more electron, but it is half filled in sodium. When sodium atom is formed, atoms interact with each other through the electrons in each atom. The energy levels are filled according to Pauli's exclusion principle. According to this principle, no two electrons can have same set of quantum numbers, or in simple words, no two electrons with similar spin can occur or can occupy the same energy. Any energy level can accommodate only two electrons, one with spin up state and other with spin down state. According to this principle, there can be two states per energy level. Figure 14.2a shows the allowed energy level of an isolated sodium atom by horizontal lines. The curved lines represent the potential energy of an electron near the nucleus due to Coulomb interaction. So, inter-atomic distance, दो atoms के बीच का distance. One is में the gap, the energy value is this level. 2s की energy value ये है, 2p की ये है. Inter-atomic distance ज्यादा है तो यहाँ पे 3 के साथ कर दिया. And then there are multiple atoms. दो atoms जब है इस तरीके से distributed है
दो से ज्यादा हुआ, तीन हुआ, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस. द 3s has come. I mean, this has got relatively closer. ठीक है. 1s, 2s, 2p and 3s. दूसरे वाले का इधर वाला जो है ये एक शॉर्ट स्पैन क्रिएट किया इंस्टेड ऑफ अ सिंगल फाइन. ठीक है. ये बात समझ में आ रही है? देखिए, दो एटम्स जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन दोनों के बीच में शेयर या इंटरेक्ट हो रहा है. दो सोडियम एटम पास आ रहे हैं तो देयर इज जस्ट अ सिंगल पेयर ऑफ एनर्जी which we are looking at. इसके साथ साथ एक और एटम अगर इस तरफ आता है, ठीक है, और आइडिया ये होता है कि जब एटम्स इंटरेक्ट करते हैं तो सेम सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बॉन्डेड नहीं है. अगर मोर देन वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो दे मे कीप ऑन शिफ्टिंग देयर पोजीशन. इज दैट ओके? मतलब बॉन्ड फॉर्म करने के बाद भी वो इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर नॉट गोइंग टू बी लोकलाइज्ड इन ऑल द केस. It doesn't happen in resonance and it doesn't happen in metal as well. Metal atoms अगर प्योर मेटल एटम्स बैठे हुए हैं तो उनका भी इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी इंटरेक्शन, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन जो है, दो सेट ऑफ एटम ए बी और सी, ए बी के बीच में सिर्फ ए बी अगर दो हैं तो ये वाला लोकलाइज्ड रहेगा. लेकिन जैसे ही बी और सी की बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जा सकता इक्विपोटेंशियल सरफेस की. ठीक है. इस मूवमेंट की वजह से वी हैव अ बैंड ऑफ, और नॉट अ शार्प वैल्यू बट अ सेट ऑफ लोअर एंड हायर वैल्यू फॉर 3s ऑर्बिटल. हाँ, इसको बैंड बोलते हैं, इसी को बैंड बोलते हैं. ठीक है. रेंज ऑफ वैल्यू हो जाती है रादर देन अ सिंगल वैल्यू. जैसे सिर्फ अगर ये इंटरेक्शन होगा, इसकी एनर्जी वैल्यू मान लो 3 इलेक्ट्रॉन, तो जब ये आ जाएगा तो इट विल बिकम मे बी 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन. इज दैट ओके? सो द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग, द interacting electrons may have any energy between this and this. ठीक है. In any case, it will have lesser than 3 electrons. ठीक है. But it will not be a fixed value. It will range between two limits. ठीक है. अब बहुत सारे अगर आ जाएंगे तो क्या होगा? That is going to create a proper with some width. ठीक है. इस इंटरेक्शन को, ये जो फॉर्मेशन हुआ, दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड. हाँ. और वैलेंस बैंड के ऊपर, अच्छा, ये एक चीज तो आइडिया होगा आप लोगों को बोर थ्योरी करने के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जैसे बोर्स थ्योरी पढ़ा था ना. हाँ. बोर्स थ्योरी में क्या था, मान लो कोई एटम है, जैसे हाइड्रोजन एटम. ठीक है. तो हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वन एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रहता है, बट इट कैन गेट एक्साइटेड एंड गो टू 2, go to 3 और go to 4 as well, right? एक्साइट होकर के ऊपर चला जाता है. अब ये पहले से प्रेजेंट होते हैं क्या? ये ऑर्बिट्स पहले से प्रेजेंट होते हैं, नहीं होते हैं? क्या लगता है आपको? एक्साइट होता है तो बन जाता है. हाँ ठीक है. मतलब बनता नहीं है,
वो सब में रहता है हमेशा, ठीक है। हर एटम के साथ कुछ ऑक्यूपाइड ऑर्बिट ऑर्बिटल्स रहेंगे और कुछ अनऑक्यूपाइड रहेंगे। अब जो अनऑक्यूपाइड है उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? जब तक इलेक्ट्रॉन्स उसमें जाएगा नहीं, वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी नहीं दिखेगी, ठीक है। इट्स लाइक सी, हमारा बॉडी है, बॉडी सरफेस हमको क्लियरली दिखता है, ठीक है। बट समथिंग वी कॉल्ड ऑरा, और लाइक आपके बॉडी की मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक जो एबिलिटीज हैं, ठीक है, दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ योर स्किन। इज दैट ओके? व्हेन यू कम क्लोज टू, लाइक आप अपने मॉम के पास जाते होगे, यू कैन फील इट, ठीक है। सो सिमिलरली हर चीज का, लाइक ये मेटल मटेरियल है, मेरे पास बॉटल पड़ा हुआ है, इसकी भी बाउंड्री एक है, और बाउंड्री के जस्ट बाहर भी इसके कुछ एटम्स हिलते डुलते रहते हैं, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इट इज। इवन सॉलिड्स के बाउंड्री पर उनके एटम्स, यानी हर बाउंड्री के बाहर उस पर्टिकुलर मटेरियल के कुछ एटम्स या constituent particles are going to roam around it beyond its boundary. Same happens over here. Existence is there, but ऑक्यूपेंसी उसकी नहीं होती है, तो वो नॉन एग्जिस्टेंट रहता है, ठीक है। नॉन ऑक्यूपाइड रहता है, इज अ बेटर वर्ड। सो वॉल्यूम जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आइटम या रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आइटम, तो वो सिर्फ इसको कैलकुलेट करते हैं। वी नेवर कैलकुलेटेड टिल हियर, क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस नॉर्मल स्टेट में नहीं है। ये तभी आएंगे एग्जिस्टेंस में जब यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुंचे। नहीं पहुंचेगा तब तक उसकी एग्जिस्टेंस नहीं, जब पहुंच गया तो इतना बड़ा रेडियस, ठीक है। जब तक नहीं पहुंचा है तब तक रेडियस सिर्फ ये। मेकिंग सेंस? सिमिलरली हाँ होता है, ऑक्यूपाइड नहीं है तो उसकी एग्जिस्टेंस नहीं। ऑक्यूपाइड जैसे ही हो जाएगा, ये जंप करके उस घर में जैसे ही पहुंचेगा, एग्जिस्टेंस हो जाएगी और वो अवेलेबल हो जाएगा। इट्स लाइक ऐसे सोचो, एक बड़ा सा बंगला है, ठीक है, और उसमें अकेले आप रह रहे हो, ठीक है। यू विल बी ऑक्यूपाइंग जस्ट वन रूम, रेस्ट एवरीथिंग विल एम्प्टी। अगर कोई भी आता है आपको ढूंढते हुए, अगर उसको पता है कि आप इस रूम में रहते हो, मे बी फ्रंट रूम में रहते हो आप, ठीक है, ऐसे हो, तो इफ somebody is coming to search you, फ्रंट रूम में देखेगा, इफ यू आर देयर इट्स ओवर। उसके लिए आपका पूरा बंगला has no realistic meaning. That room has a realistic meaning for him, because that is where he can find you. रेस्ट जो चीजें हैं सिर्फ बस देखने के लिए एग्जिस्टेंट है और नहीं भी है, उनका यूज कुछ नहीं है उस पर्टिकुलर इंसान के लिए, तो आपको वहां पे ढूंढने आता है। सेम इज हियर। So what I'm trying to say is the orbitals or orbits, extra orbits are always present in an atom. Extra orbits are always present. However, they remain unoccupied and hence non-existent. Are always available but remain unexistent till unoccupied, till they are unoccupied. They come into existence as soon as they become occupied, till they are unoccupied. तो ये वाला क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा वैलेंस बैंड। नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, 3s वाज ऑक्यूपाइड, ठीक है ना। 3s में एक इलेक्ट्रॉन था, सबके 3s 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 मिल करके ये पूरा बैंड बनाया। जितने एटम होंगे उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे ना,
50 एटम है तो 50 एटम का मिलकर के 50 इलेक्ट्रॉन रहेगा। हाँ, अब जैसे इसका इलेक्ट्रॉन जो है 3s1 में था, तो इसका नेक्स्ट हायर एनर्जी जो है ऑर्बिटल, दैट इज गोइंग टू बी 3p। ठीक है, विच इज गोइंग टू बी जस्ट प्लेस्ड ओवर, तो यहाँ पर खाली 3s तक दिखाया है, 3p is going to lie somewhere over here. Is that okay? Or maybe bit closer. तो जैसे 3s का बैंड बना, वैसे ही 3p का भी बैंड बनेगा, दो इट इज गोइंग टू रिमेन अनऑक्यूपाइड। ठीक है, खाली रहेगा। तो वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर वाला बैंड जो दैट इज गोइंग टू रिमेन अनऑक्यूपाइड, हम अभी के लिए मान रहे हैं। ठीक है, that is going to be 3p band, and that is known as the band, and that is going to be called as conduction for this sodium. It's not for all the atoms or all the elements, we are discussing with respect to sodium. दो है तो दो ही इलेक्ट्रॉन है, तीसरा आया तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा पर एटम। This is potential energy diagram of sodium, सिंगल सोडियम एटम, आइसोलेटेड एटम, फिर सेकेंड वाला 2 एटम्स, और फिर उसके बाद सोडियम में। ठीक, और मैंने ये बता दिया कि कंडक्शन बैंड भी होता है। ठीक है, जस्ट ऑक्यूपाइड के जस्ट ऊपर वाला जो बैंड होगा दैट इज गोइंग टू बी अनऑक्यूपाइड, दैट रिमेन्स अनऑक्यूपाइड इज कंडक्शन। अच्छा, इस केस में यहाँ पर इन्होंने बनाया है जो, उसके हिसाब से 3s का ही हाफ पार्ट जो है वो इन्होंने अनऑक्यूपाइड बना दिया है, एंड दैट इज कंडक्शन बैंड अकॉर्डिंग टू दैम। ठीक है, 3s, इसमें 3s वाला ही होगा क्योंकि हाफ एम्प्टी है। अगर ये फुल्ली फिल्ड हो गया होता तो फिर 3p वाला जो होता वो नेक्स्ट बैंड बना। आगे बढ़ते हैं। Curved lines represent the potential energy of an electron near the nucleus due to Coulomb interaction. Consider two sodium atoms close enough so that outer three electrons are equally likely to be on any atom. So दो atoms हैं, दो atoms के outer electrons, they are so close that they are able to interact. Hello, hello.